Top of the hour, we speak of how India is preparing for a possible future security threats. As security agencies are set to conduct the second civil defense exercise today under Operation Shield. Now, this is a follow-up of the first such activity that took place on the 7th of May, hours before Operation Sindoor. Now, the mock drill is scheduled to be conducted across 6 states and union territories. 4 of them are regions that border Pakistan, including Jammu and Kashmir, Punjab, Rajasthan and Gujarat. Now, these regions that are located near the line of control are particularly vulnerable to cross-border threats, as mock drills will also be held in Haryana and Chandigarh regions, and these exercises will begin from 5 p.m. onwards as per the government's press release. The drills that were originally scheduled for the 29th of May, but the exercise had to be postponed earlier this week, citing administrative reasons. Now, the drills will be much like on the 7th of May as mock drill were held, and this exercise will include air raid sirens, blackout simulations, evacuation drills, training to douse fire and providing first aid, as preparations are on in full swing for the mega preparedness and awareness exercise that is aimed at bolstering the state's emergency response. ये जो मॉक ड्रिल है पार्ट है ऑपरेशन शील्ड का। ये पूरे वेस्टर्न बॉर्डर पे जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं उनके सब डिस्ट्रिक्ट्स में की जा रही है। तो पंजाब के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में मॉक ड्रिल होगी, नंबर 1। नंबर 2, कल ये शाम को 6 बजे से होगी। नंबर 3, इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो उनको बाकायदा रिटर्न में भेजा गया है कि क्या क्या इसमें इंक्लूड किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लैकआउट मेजर्स, जैसे कि रेस्क्यू मेजर्स क्या हैं, फिर डिफरेंट सर्विसेज हैं जिसमें फायर सर्विसेज है, कॉप्स डिस्पोजल सर्विस है, इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन क्या है। डिस्ट्रिक्ट में कोई बड़ा फायर इंसिडेंट हो जाए क्या होगा, सडनली कोई बहुत कहीं किसी जगह पे बहुत सारे ब्लड यूनिट्स की जरूरत पड़ जाए तो वो ब्लड कहाँ कैसे अरेंज किया जाएगा। हॉटलाइन जो है वो क्या काम कर रही है कि नहीं जी। इसके बीच में नेचुरली आर्म फोर्सेस के भी रिप्रेजेंटेटिव्स इन्वॉल्व रहेंगे, उनके साथ क्या कोऑर्डिनेशन है। उसके अलावा जो वार्डन्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र, इन सब के जो जिनको वार्डन्स को इन्वॉल्व किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको सिविल डिफेंस वॉरियर्स का नाम दिया है। इनके साथ क्या इन्वॉल्वमेंट है, इनके साथ क्या तालमेल है, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिसके बारे में कल इस मॉक ड्रिल में टेस्ट किया जाएगा। तो इसमें ब्लैकआउट भी होगा? ब्लैकआउट एक पार्ट है, बिल्कुल जी। 6 बजे से लेकर कितने बजे तक चलेगी? 6 बजे तक, जब तक ये डिस्ट्रिक्ट्स की एंटायरली अपना प्रेरोगेटिव है। जब तक उन्हें लगेगा कि उनको कुछ ना कुछ इसके बारे में कुछ करना है, आपस में उनका तालमेल प्रॉपर नहीं हो रहा, शायद किसी चीज को 1 नहीं 2 बार करने की जरूरत पड़े, ये एंटायरली उनके ऊपर है। वो टाइम इसलिए सिलेक्ट किया जाता है क्योंकि कुछ देर बाद अंधेरा हो जाता है, तो आप डे टाइम और नाइट टाइम दोनों को यूटिलाइज कर लेते हैं। साहिल, सुहेल, मनोज और लखवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं as far as the Operation Shield is concerned, and with regards to the states which are border areas with Pakistan, Sahil, if you can tell us about the on-ground preparedness, what is being done on ground before the exercises or the mock drills begin? Well, the administration is all prepared for these mock drills under Operation Shield, and these drills will be in fact conducted in all districts of Jammu and Kashmir, particularly in districts that are near the line of control like Baramulla and Kupwara. Here in Srinagar, the administration has told us that these drills will be conducted in DC complex Srinagar from 5 p.m. onwards, wherein different components of civil defense will be rechecked. Since Operation Sindoor, the administration in Kashmir Valley has been in fact going to schools and teaching students how to in fact conduct these evacuation process and how to manage while in crisis. So at this point in time, the administration is all ready to conduct these mock drills from 5 p.m. onwards. There will be a blackout exercise from 8 p.m. onwards, and apart from that, the augmentation of health services, the coordination between security agencies or between civil departments will be all in fact put to practice today in the evening. The administration,
the civil defense, the SDRF and police authorities are coordinating for these mock drills for these civil defense exercises. Since Operation Sindoor, we had seen Pakistan resorting to indiscriminate shelling along the line of control, and there have been silent deaths of civilians. So to minimize that impact in future, because these are high-risk zones where these mock drills are being conducted today. These all states are in fact marked as high-risk zones, and that's why these civil defense exercises are being conducted To today. face any eventuality, we're looking at these ground preparedness, these mock drills and exercises that would be conducted in several states and union territories. Let's listen into another reaction. ये दूसरी मॉक ड्रिल है। जैसे आप लोग सब जानते हैं, पहला ऑपरेशन अभ्यास हुआ था और अब ऑपरेशन शील्ड। ये 31 मई को हम पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी जिलों में हमने उपायुक्तों को निर्देश दे दिए हैं कि इनमें क्या क्या हमें करना है। MHA ने भी जो गाइडलाइंस दी हैं, तो ये मॉक ड्रिल इज टू प्रिपेयर अस कि जो जो कंटिजेंसीज हो सकती हैं, मान लीजिए किसी आपातकाल में, जैसे कि एयर रेड के टाइम में क्या करना है, या इवैक्यूएशन अगर करनी पड़े बहुत जल्दी से किसी बिल्डिंग से कहीं से, या मेडिकल रिस्पांस टीम्स की क्या तैयारी होनी चाहिए, ब्लैकआउट में क्या होना है, हमारी जो हॉटलाइंस हैं आर्मी और एयरफोर्स के साथ वो फुली फंक्शनल हो। सो इन सभी चीजों की टेस्टिंग होगी। और जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट के हमने पिछले ऑपरेशन अभ्यास से अब तक, जब ऑपरेशन अभ्यास हुआ सिर्फ हमारे 493 वॉलंटियर्स थे पूरे प्रदेश में। आज के दिन हमारे 32,000 वॉलंटियर्स हैं। तो हमने लगातार इन दिनों हर जिले में, हर सब डिवीजन में कैंप्स किए हैं, और ये जो नए वॉलंटियर्स हैं इनकी हम ट्रेनिंग एंड ब्रीफिंग भी करा रहे हैं साथ के साथ। कल इन सब जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, NSS है, NCC है, नेहरू युवा केंद्र है, होमगार्ड है, सभी को हम एक साथ लाके उनकी ब्रीफिंग, उनकी डिप्लॉयमेंट, कहाँ कहाँ मॉक ड्रिल होंगी, वो सारी एक्सरसाइज प्लान की जा रही है। एक बार मनोज का भी रुख कर लेते हैं। मनोज हमारे साथ अमृतसर से जुड़ रहे। तो मनोज, किन इलाकों में बताया जा रहा है जहां तक ये मॉक एक्सरसाइजेज या ऑपरेशन शील्ड की जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं? देखिए, जो वेस्टर्न बॉर्डर है और खासकर पंजाब, जो कि हमने देखा था किस तरीके से पहले भी यहाँ पर कई बार ब्लैकआउट एक्सरसाइज मॉक ड्रिल की गई है, और पंजाब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी यहाँ पर पाकिस्तान के निशाने पर था। तो इसलिए पूरे पंजाब में आज एक साथ मॉक ड्रिल की जाएगी। हालांकि जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर अलग अलग समय रखा गया है। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर सरकार ने छोड़ा था कि वो अपनी सुविधा के अनुसार समय तय करें। तो अगर हम अमृतसर की बात करें तो यहाँ 6 बजे से 7 बजे तक 1 घंटे के लिए मॉक ड्रिल की जाएगी, और उसके बाद रात में या हम कहें शाम को 8 बजे से लेकर 8:30 तक ब्लैकआउट एक्सरसाइज की जाएगी। इस दौरान प्रशासन ने कहा है लोगों से कि वो घरों में रहें, अपनी लाइटें ऑफ रखें, और पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक एक्सरसाइज है, रणनीति अभ्यास है कि किस तरीके से अगर कोई आपातकाल स्थिति आती है, कोई इमरजेंसी आती है, तो उस दौरान किस तरीके से बचाव करना है। पंजाब के साथ साथ हरियाणा के सभी जिलों में भी आज मॉक ड्रिल और जो ब्लैकआउट है वो किया जाएगा, और इसमें भी अलग अलग जिलों में अलग अलग समय रखा गया है। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी, यहाँ पर भी आज मॉक ड्रिल की जा रही है। तो इस रीजन में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हर जगह आज शाम को मॉक ड्रिल की जाएगी। So from Operation Abhyas to Operation Shield, as we are looking at how the country is now preparing for any future threats, what is exactly Operation Shield? Let's put out the details. This is a civil defense preparedness initiative that aims to enhance preparedness and awareness as well. It also aims to bolster the state's emergency response. Now, what is to expect during these drills? The drills that will be much like the drills that was conducted on the 7th of May, as the centrally controlled air sirens that would be heard, blackout simulations and evacuation drills that will also be carried out. लखवीर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अगर बॉर्डर एरियाज के बारे में बात की जाए लखवीर, तो जो तैयारियां हैं, आप जो ग्राउंड रिपोर्ट्स लेकर आ रहे हैं, वो तो हमारे बॉर्डर पे स्थित जवानों की है, लेकिन अगर सिविलियंस उसमें किस तरह से एड कर सकते हैं उसके बारे में जरा बताएं। जी बिल्कुल अमिता, इसीलिए आज की जो ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल हो रही है वो काफी महत्वपूर्ण भी हो जाती है, क्योंकि आम नागरिकों की सुरक्षा कैसे की जाए और आम नागरिक उसमें किस प्रकार से अपना योगदान दें, ये काफी महत्वपूर्ण होगा। और इसके लिए गाइडलाइंस भी तमाम प्रशासन के द्वारा दी गई है कि जब शाम 5 बजे से तमाम राजस्थान के सरहदी इलाकों में ये मॉक ड्रिल शुरू होगी
तो तमाम जो आम जनता है वो प्रशासन का सहयोग करें, सायरन बजते ही वे सतर्क हो जाएं और जब ब्लैकआउट हो तो अपने घरों से बाहर ना निकले, तमाम लाइटों को बंद करें, यहां तक कि फोन की लाइट भी बंद करें और अगर घर के अंदर हैं तो तमाम पर्दों को ढक दें, तमाम जो खिड़कियां दरवाजे हैं उनके सामने तमाम पर्दे लगाएं ताकि किसी भी तरह की रोशनी बाहर ना जाए और इसके साथ ही इन्वर्टर से लेकर सोलर पैनल तक की लाइटों को भी बंद करने का निर्देश प्रशासन के द्वारा दिया गया है। इसके साथ ही सरहदी इलाकों में काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जब सायरन बजें तो तमाम लोग अपने घरों तक जाएं और जब ऑपरेशन शील्ड के तहत ड्रिल की जाए तो तमाम लोग अपनी अपनी महत्वपूर्ण तो ये जिम्मेदारी पैनिक नहीं, निभाएं। ये तैयारियों के बारे में है as far as on the ground situation is concerned, with the people being aware and to follow the rules and guidelines that the administration sets them. Thank you very much, Sahil and Lakhveer and Manoj, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।